So, hello, dear friends. In continuation to electrostatic lectures, today we will be dealing with a very famous law, Coulomb law. Coulomb law is the law that is there to calculate the magnitude of force between the two charges. अब से पहले हमने क्या पढ़ा है कि दो चार्ज अगर वो सिमिलर चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर वो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. बट टिल टुडे वी डोंट नो द magnitude of force that they apply on each other. So this is a law. It is utilized to find the magnitude of force between the 2 point charges. So it states that magnitude of force of attraction or repulsion between 2 point charges So the force between the two charges can be attractive in nature when the charges are of opposite kind. It may be repulsive in nature when the charges are similar charges, and Coulomb law is valid for point charges. What is a point charge? Point charge is a charge whose size is very small. Dimensions of the charge is very small as compared to the separation between the two charges. So when we deal with point charges, the force may be attractive, may be repulsive, and its magnitude, शॉर्ट में MAG डॉट लिखा है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. So the magnitude of force between two charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. The force may be attractive, may be repulsive. If the charges are similar, then force is repulsive. If the charges are dissimilar in nature, then force will be attractive. So if we say we have two charges Q1, Q2, and they are separated by distance r. दो चार्ज है हमारे पास, Q1 चार्ज पहला चार्ज है, Q2 चार्ज दूसरा चार्ज है, और उनमें जो आपसी दूरी है, सेपरेशन है, that is small r. Then according to Coulomb law, the force between the two charges is directly proportional to product of the charges and is inversely proportional to square of distance between them. And if we combine the two, so what we will be having?
So this is a proportionality. It can be written into equality as here small k is a constant of proportionality, but its value, whose value depends on, no doubt this is a constant of proportionality, मगर इसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है. स्मॉल k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वी से इट इज कांस्टेंट, बट फिर भी इसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है. नंबर वन, नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस, नंबर टू, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मतलब के वैसे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मगर इसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है. नंबर वन, नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस. मतलब दोनों चार्जेस के विचार में कौन सा मीडियम है. दोनों के बीच वैक्यूम है, दोनों के बीच एयर है, दोनों के बीच वाटर है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इन विच द टू चार्जेस आर सेपरेटेड. उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है, वी विल जस्ट सी. एंड when the value of k depends on the medium, so this law it will be a little bit modified. तो कैसे ये मॉडिफाई होके नया रूप ले लेता है वो हम अभी डील करेंगे थोड़ी देर के बाद. दूसरा, इसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है. मतलब कि Q1, Q2 एंड स्मॉल r ये SI यूनिट में रिप्रेजेंट किए गए हैं या फिर CGS यूनिट्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं, कि वेदर दे आर इन SI यूनिट और दे आर इन CGS यूनिट, डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू ऑफ k चेंज हो जाती है. वैल्यू ऑफ k चेंज हो जाती है. एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कूलम लॉ है ये हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है. इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओनली. सो अगर हमने यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस लेनी है तो हियर वी डू नॉट यूज साइन ऑफ द चार्ज. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. हमने उसके चार्ज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है. एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूं कि मगर मान लो हमारे पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है प्लस 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इस फॉर्मूले में जब हमने वैल्यू 10, इट विल बी 2 into 10 raised to power minus 6, 3 into 10 raised to power minus 6 divided by r square. अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, then according to this formula value of the force will be same. इस फॉर्मूले में हम -3 नहीं पुट करेंगे, +3 ही पुट करेंगे, बिकॉज ये फार्मूला हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में नहीं बताता. अट्रैक्शन और रिपल्शन हम बेसिक फंडामेंटल रूल से पता करते हैं कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो भी वो दोनों रिपेल करेंगे. If one charge is positive, another is negative, then they will attract each other.
सो जब भी हमने ये फार्मूला कूलम लॉ अप्लाई करना है, चार्ज का साइन पुट नहीं करना है। जब भी हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, चार्ज का साइन पुट नहीं करना है, बिकॉज ये हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। सो हमने चार्ज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सब्स्टिट्यूट करना है। एक और बात है कि जो कूलम लॉ है, ये है वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। जो कूलम चार्ज लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, एंड द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। एक तो सिंपल सी बात है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, तो ये रेस्ट वाला लॉ है। अगर चार्ज मूव करने लग जाते हैं देन दे स्टार्ट अप्लाइंग अ फोर्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑन ईच अदर। तो कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट के लिए ही वैलिड है। तो जब भी ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, फर्स्टली वी शुड चेक कि हमारे वो चार्ज रेस्ट पे है या नहीं है। दूसरा हमने ये चेक करना है क्या वो पॉइंट चार्ज है। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इट इज गिवन कि वो पॉइंट चार्ज है। अगर नहीं है देन वी विल हैव टू यूज सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सम डिफरेंट टेक्निक दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो भी हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, बिग चार्ज है, तो भी हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सो व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पॉइंट चार्ज होता है जिस चार्ज का साइज ऑफ द चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अगर साइज बहुत कम हो और सेपरेशन बहुत ज्यादा हो तो उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्मॉल k, it is a constant of proportionality whose value depends upon nature of medium and system of units. So normally हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट ही यूज करते हैं, एक SI एक CGS। नॉर्मली हम टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं, SI and CGS. So if the medium is vacuum or air, we approximate air as a vacuum। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एयर और वैक्यूम को एक जैसा ही मान के सॉल्व कर देते हैं। सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू होती है 1। सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू 1 होती है, तो ये जो कूलम लॉ है ये सिंपली ऐसे बन जाता है। तो दिस इज ए व्यू ऑफ कूलम लॉ इन CGS system and when the medium is vacuum. If system is SI तो k की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9। सो फोर्स का फार्मूला बन जाता है so this is a Coulomb law in SI system and in vacuum। और इस k की वैल्यू को हम SI सिस्टम में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस k की वैल्यू को हम SI सिस्टम में ऐसे भी लिख सकते हैं, where
epsilon naught. Epsilon naught is a new constant called absolute electric permittivity of vacuum, or in terms of absolute electric permittivity of vacuum, Coulomb law will be modified as प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये कूलम लॉ के अलग अलग रूप हैं सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एंड ऑल दीज फॉर्मूलाज आर फॉर वैक्यूम. ऑल दीज फॉर्मूलाज आर फॉर वैक्यूम. क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया, क्या बताया, कि के की वैल्यू जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है. तो यहां हमने मीडियम भी स्पेसिफाई कर दिया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी स्पेसिफाई कर दिए हैं. सो अभी हमारे पास एक नई टर्म आ गई है, व्हाट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. सो अब हम इसके साथ डील करते हैं कि ये नई क्वांटिटी जो हमारे पास आई है, ये नई क्वांटिटी क्या है. सो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारा कूलम लॉ खत्म हो जाता है और हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है एप्सिलॉन नॉट. इसको लिखते कैसे हैं? सी, एक लाइन, इट इज नॉट रिटन लाइक दिस, ये गलत है. कैसे लिखते हैं? सी एप्सिलॉन. It is read as epsilon naught. सो ये नई क्वांटिटी हमारे पास आई है. सबसे पहले हम इसके यूनिट्स, व्हाट विल बी इट्स यूनिट्स. सो इसके यूनिट्स के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square. So epsilon naught is 1/4 pi F Q1 Q2 divided by R square. तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या आएंगे? 4 pi इज ए नंबर, इसके कोई यूनिट नहीं होते. फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन. चार्ज के, डिस्टेंस के. सो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स हुए So these are the units of epsilon naught. अब बारी है इसके डिमेंशनल फॉर्मूले की. डिमेंशनल फॉर्मूले के लिए भी हम यही फार्मूला कूलम लॉ का दोबारा से लिखते हैं. सो एप्सिलॉन नॉट का डिमेंशनल फार्मूला 4 पाई इज ए नंबर. नंबर का तो कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं होता. फोर्स का होता है. व्हाट इज ए डिमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स? M1 L1 T-2. डिस्टेंस का L स्क्वायर. चार्ज का डिमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सो फॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, ये डिमेंशनल फार्मूला हमने इससे पहले लेक्चर में भी ड्राइव किया था. करंट से हम चार्ज का डिमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि डिमेंशनल फार्मूला जो होता है वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में होता है.
चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे यहां पे हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिया है, मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वैसे ही हमने चार्ज को करंट एंड टाइम में कन्वर्ट कर दिया। करंट का डायमेंशनल फार्मूला ए होता है, टाइम का कैपिटल टी होता है। सो वी विल यूज दिस हियर। 2 टर्म्स लिखेंगे, एक पहले चार्ज के लिए, एक दूसरे चार्ज के लिए। तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है m की पावर -1 l -3 t 4 a 2। so this is the dimensional formula of epsilon. next is value of epsilon. epsilon की वैल्यू कितनी होगी? तो अभी हमने लिखा था कि SI और वैक्यूम में 9 × 10⁻⁹ होता है। वैल्यू ऑफ स्मॉल k इन वैक्यूम एंड SI सिस्टम इज 9 × 10⁻⁹ एंड इट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है और यूनिट्स हम यहां से लिख देते हैं। सो ये वैल्यू और ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ कूलम लॉ। अभी हमने इसमें क्या डील किया है? हमने कूलम लॉ पढ़ा क्या होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इसकी वैल्यू मीडियम में कैसे डिपेंड करती है। तीसरा हमने पढ़ा कि इसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कैसे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जो फार्मूले में k होता है इसकी वैल्यू मीडियम पे भी डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू सिस्टम पे भी डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सो बोथ हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिस्टम CGS है, सिस्टम SI है, ये कूलम लॉ के फॉर्मूले को इफेक्ट करता है और फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस की वैल्यू को भी इफेक्ट करता है। सो अब हम पढ़ेंगे कि मीडियम कैसे कूलम लॉ को इफेक्ट करता है, हाउ मीडियम इफेक्ट्स कूलम लॉ। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि मीडियम की वजह से कूलम लॉ की फॉर्म कैसे चेंज हो जाती है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या क्वांटिटी है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक टू चार्जेस Q1 Q2 and both of the charges are separated by distance small r और हम वो दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रख देते हैं। हम दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रख देते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, separation between them is small r and they are placed in vacuum। तो उन दोनों चार्जेस के बिटवीन फोर्स कितनी होगी उसको हम लिखते हैं फोर्स VAC, VAC for vacuum, the two charges are placed in vacuum। F for force between the two charges when they are placed in vacuum। so this is a formula जो अभी हमने पढ़ा है, सिंपल कूलम लॉ
for two charges placed in vacuum. अब हम क्या करते हैं, अब हम उन्हीं दो चार्जेस को वैक्यूम की जगह से किसी मीडियम में रख देते हैं. चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस बिटवीन them is also same, but now we have changed the vacuum to medium. तो जो फोर्स है उसको हम लिखते हैं Fm. Fm is force between the two charges in medium. तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहां पे जो एप्सिलॉन m है, इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. सो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास दो फार्मूले हैं, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम. अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड. सो F वैक्यूम, F मीडियम, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा. Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R² भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी F वैक्यूम ओवर F मीडियम, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट. तो इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन r. एप्सिलॉन r है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज एप्सिलॉन r. इसको हम कैपिटल K भी बोलते हैं. कैपिटल K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एक बात का ध्यान रखना है, जब हमने कूलम लॉ पढ़ा था वहां पे जो K यूज किया था वो K था स्मॉल k, एंड हियर वी राइट कैपिटल K. तो स्मॉल k और कैपिटल K लिखते समय आपने ये ध्यान रखना है. सो एप्सिलॉन r रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसके इक्वल होता है. सो यहां से इस फॉर्मूले से रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो डेफिनेशंस आती हैं. डेफिनेशन नंबर 1, पहली डेफिनेशन है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम is defined as equal to the ratio of. इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, relative electric permittivity और dielectric constant of a medium is equal to the ratio of, it is a ratio of two terms. डिनोमिनेटर में क्या है, absolute electric permittivity of medium, डिनोमिनेटर में है absolute electric permittivity of vacuum. So there is no need to remember these kind of definitions. ये खुद का खुद याद हो जाती हैं. Relative electric permittivity और dielectric constant is equal to ratio of these two. और इन दोनों का नाम लिख देना है बस, absolute electric permittivity of medium to absolute electric permittivity of vacuum. Simple. So पहली
पहली डेफिनेशन में हमने क्या यूज किया, ये वाली रेशियो यूज की। सेकेंड डेफिनेशन में हम ये वाली रेशियो यूज करेंगे। relative electric permittivity or dielectric constant of a medium is equal to the ratio of अब ये वाली रेशियो किसकी है, ये वाली रेशियो किसकी है, फोर्स की। डिनोमिनेटर में जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में हैं, डिनोमिनेटर में जब दोनों चार्जेस मीडियम में, इट इज टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द two charges in vacuum to the force between the same charges separated by same distance। ये हमने ध्यान रखना है, दोनों चार्ज सेम है और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस भी सेम है। सो फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन मीडियम। और इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डेफिनेटली फार्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस को इफेक्ट करती है। और इस फार्मूले से हमारा कूलम लॉ मॉडिफाई हो जाता है। कैसे मॉडिफाई होता है ये अभी हम ड्राइव करते हैं। ये वाला फार्मूला कब है, जब हमारे पास वैक्यूम है। और ये वाला फार्मूला कब है, जब हमारे पास मीडियम है बिटवीन द टू चार्जेस। और यहां से हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन एम आता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और की एप्सिलॉन नॉट। और ये वाली वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें, देन व्हाट वी विल फाइंड 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह पे और के, यहां पे कैपिटल के लिखना है बेटा। कैपिटल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्मॉल के था हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, देन यू विल गेट so this is a very important relation. This is a very important relation for all media. K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, सिर्फ 1 होती है वैक्यूम के लिए। K की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम को छोड़ के सभी मीडिया के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, देन फोर्स इट विल बी लेस देन फोर्स फॉर वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि दो चार्ज अगर उनके बीच कोई मीडियम है, तो उनके बीच जो इंटरेक्टिंग फोर्स है कूलम फॉर्मूले की वजह से जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो फोर्स कम होगी जब उन्हीं दो चार्जेस के बीच एक वैक्यूम होगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। और ये हमारे एक और क्वेश्चन को भी आंसर करता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट
तो ये आप पढ़ते हैं वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें बहुत सारे साल्ट्स जो हैं वो आसानी से घुल जाते हैं, दे गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर वेरी इजीली। तो इसका कारण है कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है। सो दिस इज वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम इस फॉर्मूले में लिखें तो फोर्स फॉर मीडियम इट विल बी फोर्स फॉर वैक्यूम डिवाइड बाय 81। So Fm it will be very less than F vacuum. So if we take the example of sodium chloride salt in water, so sodium chloride में होता है एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल देंगे तो वाटर इज ए मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, तो उस मीडियम के आने से जो फोर्स है बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, अट्रैक्टिव फोर्स है वो 1/81 टाइम्स हो जाती है। 1/81 टाइम का मतलब है फोर्स बहुत कम हो जाती है। तो फोर्स कम होने से जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एंड हाइड्रेशन ऑफ sodium ion and chloride ion in aqueous solution takes place। तो उससे सोडियम क्लोराइड इजिली वाटर में घुल जाता है। सो प्यारे बच्चों, हमने आज क्या क्या पढ़ा? पहले कूलम लॉ पढ़ा। कूलम लॉ का फार्मूला, एक बात ध्यान रखनी है, कूलम लॉ जो वो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है। तो Q1 Q2 की वैल्यू विदाउट साइन पुट करनी होती है कूलम फॉर्मूला में, साइन पुट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। वेदर द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इट विल बी गिवन बाय वेदर द चार्जेस आर सिमिलर काइंड और द चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर। दूसरा, जो कूलम फोर्स में हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है और मीडियम पे भी डिपेंड करती है। देखो ये फार्मूला वैक्यूम के लिए है, बिटवीन फॉर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला फार्मूला ये है जब वो चार्ज किसी मीडियम में है। सो दिस कंप्लीट्स अवर टुडेज पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Also press the like button. Also share the channel with your fellow friends. Thanks.